So let us start working capital management, guys. Working capital management is actually one of the longest chapter ever I seen in our professional courses. But here there is one separate unit. You can have the understand of uh, the weightage of this topic by believing that what is the content. There is a whole unit 3 of this course of this chapter in your course, so it is a huge importance. So whatever may be the paper size, but out of that paper, one fourth of that paper comes from this chapter. But they have kept it in a theoretical way. They didn't kept it in a practical way, though the chapter contains practical topics also. So let me show you that what we are going to study in this working capital chapter. See, this is what we are going to study. This is the first chapter in which there is one introduction, then concept, operating and cash, conversation cycle, etc. Permanent and variable working capital, balance working capital position. So these are the topics in first chapter. In second chapter, there are further few topics they have retained, including factoring. In this third chapter, inventory management, they also kept certain topics. There is one fourth chapter, cash management, and fifth chapter, working capital financing. So let us study all these 5 chapters one by one in this topic. Now, someone stated in a message that you are not getting my voice properly. Is it to everyone or only to few one? सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है properly? Yes, sir. चलो done. So if some particular person is having an issue, I can say that please log out and join again. And if it is okay, then let me start. Now I shown you this topic, and if I see the bunch of this chapter of this 5 chapters taken together, I grouped this into 5, and there are 105 pages of these 5 chapters taken together. But let me show you that this is your one of the paper, latest paper. And if you find that how many content of working capital in this paper is there, then हमें हटा देते हैं. So बच्चों, what is working capital management? सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है. पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझते हैं. वर्किंग कैपिटल क्या है? तो है ना, कंपनी के शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ऐसे 2 सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं. और उसमें ना वर्किंग कैपिटल इज वन ऑफ द फंड. मीन्स कंपनी चलाने के लिए हमको जो पैसे चाहिए ना, वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल में से आते हैं. मीन्स आपका कैश है, बैंक है, ये जो है ना, इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो आपके जो धंधा चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, वो सब वर्किंग कैपिटल में से आते हैं. और अगर जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट प्रॉपर चल रहा है ना, वो कंपनी अच्छे से चल रही है. जो कंपनियां अपना वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर रही है, वो अच्छे से नहीं चल रही है. मैं आपको बताऊं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की मेजर कंपनियों में लॉस हो गया है. रीजन क्या है? लेक ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना. उनका इतना ज्यादा डेप्ट बढ़ गया है कि दे कैन नॉट इवन रीपे देयर डेप्ट. उनके बड़े भाई को एक बार पैसा देना. दिस इज द बिगेस्ट problem with the companies, that if they are not able to manage the working capital properly, the company can be liquidated. कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि working capital is the lifeblood of a business. Means if you are not using it properly, there would be a serious problem. अब मैं उसके reasons और everything उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. Let me show you from my template first, है ना. वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने कुछ बेसिक डिस्कशंस मेरे सेशंस में किए थे. वो डिस्कशंस को आपको मैं बताना चाहता हूँ. जरा देखो.
अब वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? हम सभी को मालूम है कि वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बराबर है? बट है ना, सपोज ये बैलेंस शीट है ना, देखो ध्यान से, सपोज दिस इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ना, व्हाट एसेट साइड पे पहले फिक्स एसेट आती है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, और इंटेंजिबल में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब एसेट्स। फिर दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट, जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आता है करंट एसेट्स, बराबर। करंट एसेट्स में कैश आता है, बैंक आता है, रिसीवेबल्स आता है, बिल्स, रिसीवेबल्स, ये सब चीजें आती है। तो ये आपका करंट एसेट है। अब ये करंट एसेट अकेला ले ना, तो उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बट है ना, कुछ कंपनियां क्या करती है, करंट एसेट इधर दिखाएगी, करंट लायबिलिटी इधर दिखाएगी, लायबिलिटी साइड। बट कुछ कंपनियां ऐसा दिखाएगी, देखो कि भाई एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट के बाद सीधा वर्किंग कैपिटल दिखा देगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बराबर, ये दिखा देगी। तो वर्किंग कैपिटल ये है, तो ये इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल के अलग अलग मीनिंग है, उसमें एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी मीनिंग है, एक नेट वर्किंग कैपिटल भी मीनिंग है। अब व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो ऐसा कहा गया है कि इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। मीन्स धंधे का मेन ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड का कितना इंपॉर्टेंस है, उतना ही बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस है ना। मैं ये एक सेंटेंस में बताना चाहता हूँ कि डे टू डे एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन विदाउट वर्किंग कैपिटल। If you are not having proper working capital, you cannot do your day-to-day working operations. Let me explain how. Suppose if you are disproportionate, or if you are not having working capital, what will happen? That suppose you are in a manufacturing industry, what you are in need of raw material to produce the goods. What will happen that if you are not proper in working capital management, you cannot pay to this money, material providers. So raw material suppliers, you are not able to pay them timely. So they will stop supplying the raw material. And if raw material will not come, how your production operation will be done? Now, chalo, someone is managing that he get the flow of the material. But after material, you need a workers. So you have to pay the wages. But if you don't have proper management of working capital, you cannot pay timely wages to the workers. So if material is there, but if worker is not ready to work, what will happen? Your production will again disturb. Chalo, someone is managing material as well as workers. Then what will happen? The raw material is subject to certain production process. Now production process is done within the factory. Now within factory you need some electricity. But suppose if you are not managing working capital properly, what will happen? You will not be able to pay this electricity bill. And the GEB, that is Gujarat Electricity Board, yeah, electricity supplier, will stop your connection. So if material is there, even workers is there, but no electricity, you cannot produce. Suppose material is there, labor is there, electricity is also there, but suppose you are not able to pay the rent, you are not able to pay the insurance, you are not able to pay suppose some other charges, है ना? Like patent, trademark, copyright, goodwill, that charges, royalties, everything. So any expenses you are not able to pay, what will happen? Your business will not run. So if there is a problem of working capital, that this all type of problems will arise in a business. So that is why I am telling that it is a lifeblood of a business, and without working capital, you cannot run your business even for a day. Fine. You need a money for day-to-day operation, and for that a working capital is required. Now, components of working capital. There are two components of working capital. One is current assets and second is current liabilities. These are the two components. One is this current assets. Second is this current liabilities. Okay. Now, current asset includes debtors, the receivable, short-term loans given, prepaid expenses, cash bank, and various type of stocks. While current liabilities includes opposite to that of debtors, there is a creditors. Opposite to that of bill receivable, there is bills payable. Opposite to that of short-term loan given, it is short-term loan taken. Opposite to prepaid expenses, there is outstanding expenses. Opposite to cash or bank credit amount, it is bank overdraft or cash credit. And but yes, there is no opposite to that of a stock in a current liabilities. But yes, stocks creditors would be there.
है ना. So what I want to tell is these are the components of working capital. So whole working capital management chapter is revolving around this few topics. Now see, there this is the classification or types of working capital. Which are the types of working capital? Someone is having voice. Please. Chalo. So here I am telling you that on the basis of value, working capital is having a two types. One is gross and second is net. In gross working capital, only current assets, while in net working capital, there is a current assets minus current liabilities. But on the basis of time, there is a permanent working capital, and there is second is fluctuating, that is temporary working capital. This is also known as the seasonal working capital. Fine. So on the basis of time, there is a fluctuating, temporary or a seasonal capital, while one another classification is a permanent working capital. Now let me explain with this. See, this is the example of this classification on the basis of time, but let me explain one by one. Suppose I start my business. Suppose I am a trader and I am starting my business by starting one shop. So for trading purpose, I need certain materials into my shop. Now that material will involve some amount of investment, you know. Suppose मैंने 5 लाख का स्टॉक भरा है ना मेरे शॉप के अंदर, तो वो स्टॉक क्या है? It is one kind of a working capital. It is a current assets, है ना. स्टॉक इज वन ऑफ द करंट एसेट्स. मेरे को क्या बताना है कि सीजन होगी तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है. चलो एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि सपोज मैं आइसक्रीम का दुकान चला रहा हूँ, तो अभी ये सीजन में ना आइसक्रीम में स्टॉक की ज्यादा जरूरत रहेगी, है ना, इन अ समर टाइम. बट इन अ winter, ice cream is less required. Fine. So what I'm telling that there are few periods in a year in which you need more working capital, more stock, more cash, and in some period you need a less working capital. चलो let me explain to the hotel industry. चलो किसी का खाने पीने का होटल है, तो उसको सैटरडे संडे कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो सैटरडे संडे क्या होगा कि होटल्स में ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होगी. तो मैं क्या करूंगा रेगुलर बेसिस में सपोज 6 या 7 लोगों को रखूंगा, वेटर्स वगैरह मिला के. बट है ना सैटरडे संडे को मैं 10-10 11-11 वेटर्स को रखूंगा, तो 4 या 5 वर्कर ज्यादा रखूंगा क्योंकि उस दिन रश ज्यादा रहेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन माई सीजन आई नीड अ वर्किंग कैपिटल. इन माई मेन सीजन आई नीड मोर वर्किंग कैपिटल, एंड इन माई ऑफ सीजन टाइम आई नीड अ लेस वर्किंग कैपिटल. फाइन. So these are the working capital with respect to this time. Based on time, there is a permanent working capital and fluctuating. अब है ना suppose मेरा दवाई का शॉप है, तो there is always a certain lakhs worth rupees stock of medicine into my shop. जब से जो शॉप चालू किया ना तब से suppose 10-20 लाख का स्टॉक है. जब भी खाली होता है थोड़ा मैं नया ले आता हूँ. तो ऑन एन एवरेज मेरी दुकान में 10-20 लाख की दवाइयाँ रहती है, तो ये 20 लाख का जो मेरा ऑन एन एवरेज स्टॉक रहता है ना, ये मेरा फिक्स्ड पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल. बट कुछ सीजन में सपोज ये जब सीजन 2 सीजन मर्ज होती है ना, विंटर के बाद मॉनसून आता है, सॉरी विंटर के बाद समर आता है, समर के बाद मॉनसून आता है, मॉनसून के बाद वापस से विंटर आता है, ऐसा गोल गोल. और जब भी 2 सीजन मर्ज होती है, there are more patients in the market, and if there are more patients there is a more medicines required. तो वो सीजन में ना मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो सपोज ये एक्स एक्सिस पे टाइम है एंड वाई एक्सिस पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और ये टाइम है ना ऐसा सीजन ऑफ सीजन चलता रहता है, तो कभी कभी मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम. मीन्स ऐसा चार्ट बनेगा.
है ना, कभी ज्यादा वर्किंग, कभी कम वर्किंग कैपिटल, कभी ज्यादा वर्किंग, कभी कम वर्किंग कैपिटल। अब इसके ये लोअर पार्ट को हम टच करें ना, तो इतना वर्किंग कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। और ये वाला पोर्शन है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी या फिर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, बराबर, या फिर सीजनल वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। आर यू गेटिंग? बट अगर मेरे को फर्म को पहचानना है कि ये कौन सी फर्म है बेस्ड ऑन दिस वर्किंग कैपिटल चार्ट, तो मैं देखूंगा कि ये जो है ना लोअर बाउंड, दैट इज फिक्स वर्किंग कैपिटल, वो अगर कंटिन्यू रह रही है सेम लेवल पे, ये देखो पहली फर्म में सेम लेवल पे रह रही है, तो उसको स्टेबल फर्म बोलेंगे। बट ये दूसरी दूसरी पिक्चर में देखो, ये है ना लोअर बाउंड बढ़ रहा है, मीन्स आप देखो फिक्स वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, तो ये फर्म को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ फर्म बोलेंगे। और जिस फर्म में ये डिक्लाइन हो रहा है ना, ये फिक्स पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल डिक्लाइन हो रहा है, ये लोअर बाउंड नीचे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई डिक्लाइनिंग फर्म है, उसकी फिक्स वर्किंग कैपिटल अब कम हो रही है, बराबर। सो आर यू गेटिंग दिस बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? बच्चों ये सब जाने बिना है ना, मैं ये चैप्टर के अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो आर यू एबल टू गेट द पॉइंट्स मैं जो बोल रहा हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. ओके, चलो गोइंग फर्दर। अब है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। नाउ व्हाट इज दिस? ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल का मीनिंग है कि आप कैश से शुरू करते हो, यू आर स्टार्टिंग विद दिस कैश पॉइंट, है ना, यहां से चालू किए। अब सपोज आप ट्रेडर हो, तो कैश थी आपके पास, तो कैश में से आप गुड्स लाए, फिर गुड्स में से गुड्स को बेचे आपने, तो डेटर्स क्रिएट हुए, डेटर्स के पास से वापस से कैश आ गई। कुछ वर्कर्स डायरेक्टली कैश परचेज करने लगे हमसे, तो वो कैश में से गुड्स आए और गुड्स में से सीधा कैश सेल्स के थ्रू कैश वापस कन्वर्जन हो गया। तो ये कैश टू कैश का जो सफर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। बट है ना, ये साइकिल मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग होती है। मैन्युफैक्चरर कैश में से रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल में से डब्ल्यूआईपी बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में से फिनिश गुड्स बनता है, फिर फिनिश गुड्स अगर क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर जनरेट होगा, और फिनिश गुड्स सीधा कैश सेल्स करोगे तो वापस से कैश आ जाएगा। एंड इवन ये डेटर्स जब पैसे देंगे तब कैश आ जाएगी। तो ये कैश टू कैश का सर्कल है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ना, वो दो प्रकार की है। अगर आपको ये पूरा चीज टाइम पीरियड वाइज चाहिए, इट मीन्स कि कैश में से रॉ मटेरियल कितने दिनों में, कितने दिनों तक बन गया है, रॉ मटेरियल में से डब्ल्यूआईपी बनने में कितने दिन लगे, डब्ल्यूआईपी में से फिनिश गुड बनने में कितने दिन लगे, फिनिश गुड में से डेटर्स जनरेट होने में कितने दिन लगे, डेटर्स में से कैश आने में कितने दिन लगे, ये पूरा अगर मैं चेक करूं डेज के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में, वीक के फॉर्म में या मंथ के फॉर्म में, तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल इन टर्म्स ऑफ टाइम होगी। और यही चीज अगर मेरे को कैश, बैंक, फिर रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स, ये सब करंट एसेट के तौर पे लिखूं, एंड उसमें से ये सब करंट लायबिलिटीज माइनस करूं, अब जो आता है वो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। तो ये भी ऑपरेटिंग साइकिल ही है, बट वो रुपीज वाली है और ये टाइम वाली है, बराबर है। सो these आर द बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब एक दूसरा कंसेप्ट है एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या होता है ना, हमारे पास जरूरत से ज्यादा वर्किंग कैपिटल हो ना तो भी तकलीफ है, एंड जरूरत से कम हो ना तो भी तकलीफ है। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा है, मेरे को चाहिए सपोज 10 लाख की वर्किंग कैपिटल, बट इन माय बिजनेस आई हैव 18 to 20 लाख वर्थ वर्किंग कैपिटल, तो ये बहुत ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो वहां लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। लिक्विडिटी मीन्स जब चाहे हो आपके पास कैश चाहिए, स्टॉक चाहिए तो स्टॉक है, सब अवेलेबल है। बट है ना, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब 10 लाख की जरूरत है, आप 18 लाख या 20 लाख लेके बैठे हो, तो बाकी के 8 से 10 लाख है ना अनप्रोडक्टिव है। अगर ये 8-10 लाख की मैं एफडी कर देता ना, तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती। बट मैंने एफडी नहीं की, मेरे पास एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रखा, तो क्या होगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी लेस हो गई एंड लिक्विडिटी कैसी होगी, ज्यादा हो गई। बट उससे उल्टा कि अगर मैं वर्किंग कैपिटल बहुत कम रखूं, 10 लाख की जरूरत है, मैं 3-4 लाख ही रखता हूँ, तो है ना लिक्विडिटी कम है बट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। अब वो जो 15-20 लाख पड़े, 20 में से 4-5 ही रखता हूँ, बाकी के 15 लाख की एफडी करा देता हूँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो एफडी वाली, है ना।
बट जो आपकी लिक्विडिटी है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, है ना, धंधा चलाने में तकलीफ हो जाएगी। अब कुछ इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं प्रैक्टिकल। अब ये सब प्रैक्टिकल टॉपिक्स में आते हैं, इसलिए मैं अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये उसके सम्स कुछ आते हैं तो इस प्रकार के आते हैं। देखो ये ऐसे सम्स आएंगे एंड फिर इसका ऐसे वर्किंग कैपिटल ढूंढ के जवाब देना पड़ेगा। हमको कैश ढूंढना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ढूंढना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, ऐसा सब उसका फिगर ढूंढना पड़ेगा एग्जांपल्स में से। एंड फिर उसमें से ऐसा करंट लायबिलिटी और ये सब माइनस करके आप है ना नेट वर्किंग कैपिटल ढूंढ लेते हो। बहुत मस्त कंसेप्ट है, बट आपको इसके एग्जांपल्स नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। अब मैं ना सीधा आपके आई.एम. पांडे के अंदर चला जाता हूँ कि लेट अस डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ योर टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ आई.एम. पांडे में चैप्टर नंबर 27, इफ यू हैव दिस बुक प्लीज ओपन एंड इफ नॉट देन प्लीज फोकस हियर। चलो, सो वर्किंग कैपिटल की शुरुआत करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं? तो फर्स्ट कंसेप्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड वर्क कंसेप्ट इज अ नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट ओनली and what is net working capital? So it is difference between current assets and current liabilities. So इतना फर्क है। What is gross working capital? Only current assets. While what is net working capital? It is current assets minus current liabilities. Now focusing on current assets management. Why we are talking about current assets management? So first thing, how to optimize your investment in current asset. That is what you have to think कि मैं वर्किंग कैपिटल में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट रखूं। एंड दूसरा, हाउ शुड करंट एसेट्स बी फाइनेंस्ड? ये करंट एसेट में कहाँ से रुपए लाऊंगा? मीन्स मेरे को एसेट खड़ी करनी है तो आई नीड अ मनी, तो ये करंट एसेट लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, है ना। इक्विटी शेयर इश्यू करूं, डिवेंचर इश्यू करूं, क्या करूं, या शॉर्ट टर्म लोन ले लूं, क्या करूं? अब यहाँ है ना दो एक्सट्रीम पॉसिबल है। व्हाट वी हैव टू डू इज अवॉइड टू डेंजर पॉइंट्स। पहला डेंजर पॉइंट क्या है मालूम है? एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। एंड दूसरा डेंजर पॉइंट क्या है मालूम है? इन एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल means less than sufficient. Excessive means more than sufficient and inadequate means less than sufficient. दोनों तरफ तकलीफ है। मैंने बताया ना कि अगर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, तो लिक्विडिटी कैसी है? लिक्विडिटी ज्यादा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कैसी है? तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है। अब वर्किंग कैपिटल जरूरत से कम है तो लिक्विडिटी कम है, बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है? ज्यादा है। बराबर। तो ये दो सिचुएशन है, आपको ध्यान में रखनी। बराबर। अब आगे है फोकसिंग ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब ये लिक्विडिटी की जरूरत क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विडिटी क्यों चाहिए? जिनकी लाइफ में, जिनकी कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है ना, वहां बहुत प्रॉब्लम होगी ना। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? मैं आपको उदाहरण देता हूँ लिक्विडिटी क्या है ना। सपोज इधर दो लोग हैं, मैं किसी दो का नाम लेता हूँ। चलो, एक फाल्गुनी है, एक श्रद्धा है। आई एम टेकिंग द नेम ऑफ दिस टू गर्ल्स, just it is illustrative list. I don't know them, I don't know their family, but I am taking one example. Suppose फाल्गुनी की मदर है ना, वो हमेशा उनके पर्स में कुछ ना कुछ कैश पड़ी होती है। शी ऑलवेज ब्रिंग कैश विद हर, और सफिशिएंट ही होती है, मोर देन इनफ होती है ना। पॉकेट में 5-10 हजार रुपए पड़े होते हैं, कहीं भी बाहर जाना हो तो शी ऑलवेज हैव अ मनी। बट श्रद्धा की मम्मी है, वो नॉर्मली अपने पॉकेट में पैसे नहीं रखती, तो उनके हस्बैंड के साथ जाती है, या हस्बैंड ही पेमेंट करते हैं। बट कभी कभी अकेला जाना हो तो उनके पास 500,000 रुपया होता है। अब है ना, फाल्गुनी की मम्मी के पास एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है, ऐसा मान लो, बट श्रद्धा की मम्मी के पास कम वर्किंग कैपिटल है। अब उससे फायदे नुकसान दोनों हैं। फायदे नुकसान क्या है कि फाल्गुनी की मम्मी के पास पैसे ज्यादा है ना, तो ज्यादा खर्च हो जाएंगे। इधर गए, ये खाना खाना है, बच्चों ने बोला तो खिला दिया, बच्चों ने बोला मम्मी ये चाहिए तो ये दिला दिया, पैसे थे तो करा दिया। अब श्रद्धा की मम्मी के पास वो नहीं थे तो है ना, वो अवॉइड करते, नहीं पापा आएंगे तब।
तो इससे क्या होगा कि वो पैसे बच जाएंगे, तो फिजूल खर्ची नहीं होगी। एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल से ना फिजूल खर्ची हो जाती है, जबकि कम वर्किंग कैपिटल से एटलीस्ट फिजूल खर्ची नहीं होगी। बट है ना, ये अच्छी वर्किंग कैपिटल, ज्यादा वर्किंग कैपिटल के फायदे क्या है मालूम? ये ना कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई गुड्स एकदम मस्त सस्ता है, बट अभी कैश में ले लो तो। अब है ना, कुछ टाइप का घर का सामान चाहिए, अब किसी ने है ना वहाँ एक दिन के लिए ही ऑफर रखा है कि आज के दिन ये पड़ा है, ले जाओ, है ना, 2000 में ये सब सामान। अब घर की बड़ी एसेंशियल चीजें हैं और उसकी मार्केट वैल्यू 5-6 हजार होगी, बट वो 2000 में दे रहा है, तो उनके पास कैश पड़ी होगी, फाल्गुनी के पास, फाल्गुनी के मदर के पास, तो वो तुरंत ले पाएगी। बट श्रद्धा की मम्मी ये नहीं ले पाएगी। रीजन क्या है? 400-500 रुपया होते। तो अब ये क्या है, ये वर्किंग कैपिटल के फायदे भी है कि कोई सपोज एकदम से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई जिसमें कुछ सस्ता मिल रहा है, कैश हो तो सस्ते में मिल जाएगा, तो आप ये अपॉर्चुनिटी को एनकाउंटर कर पाओगे। बट इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर वर्किंग कैपिटल, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप एनकाउंटर नहीं कर पाओगे। इवन चलो सपोज घर में एकदम से गेस्ट आने वाले हैं, मम्मी बाहर निकली है, पापा ने फोन किया कि शाम को 10-15 लोग आ रहे हैं, खाना बनाना है, तो मम्मी बाहर निकली है, पैसे खिस पॉकेट में है, तो है ना मम्मी बाहर से चीजें ले आएगी। अब यहाँ सपोज इनकी मदर के पास ऐसा कैश ना पड़ा हो, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि 15 लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँ, कैसे करूँ। तो कहने का मीनिंग ऐसा ही होता है कि एकदम से बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए, तो लिक्विडिटी ज्यादा है, तो आप ज्यादा स्टॉक ले पाओगे, ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय कर पाओगे, और वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाओगे, कमा पाओगे। बट अगर आपके पास प्रॉपर कैश ही नहीं है, तो ज्यादा स्टॉक वगैरह आएगा नहीं, और आपको ये बड़ा ऑफर मिला है तो उसका आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ये सब है ना फायदे गैर फायदे। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना बड़े सोच के डिसाइड करनी होती है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे हमको फोकस करना है। लिक्विडिटी जरूरत से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। चलो अब तो और क्या है, ऑपरेटिंग एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। अबे ना अभी मैंने ऑपरेटिंग साइकिल की बात की। ये ऑपरेटिंग साइकिल कैसे बनती है, तो मैंने बताया कैश टू कैश वाली साइकिल, जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो उसमें देखो, पहला है एक्विजिशन, मींस बाय करने में कैश पड़ी हो तो कैश में से रॉ मटेरियल बाय करेंगे, है ना। फिर दूसरा क्या है, उसमें से प्रोडक्शन करेंगे, सो कैश में से रॉ मटेरियल टू डब्ल्यूआईपी टू फिनिश गुड्स, उसमें टाइम लगेगा। फिर फिनिश गुड्स को सेल करेंगे, डेटर जनरेट हो गया और डेटर्स में से कैश आएगा। तो ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ये पीरियड को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल, बराबर। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है, उसमें क्या क्या आता है, तो एक आता है इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड, तो रॉ मटेरियल का, फिर डेटर्स का पीरियड, बराबर, फिर डब्ल्यूआईपी पीरियड, फिर फिनिश गुड पीरियड। ऐसे अलग अलग पीरियड आते हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, है ना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो इतनी चीजें आती है। ये रहा देखो, क्रेडिटर्स पीरियड। तो मेन ये चीजें आती है, रॉ मटेरियल टर्नओवर पीरियड, डब्ल्यूआईपी पीरियड, फिनिश गुड पीरियड, डेटर्स पीरियड एंड क्रेडिटर्स पीरियड। ये 5 पीरियड का प्लस माइनस करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। ठीक है। तो देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन कंसर्न है, कहाँ से चालू होता है, तो कोई एक लेवल से चालू होगा, कैश में से आप ये सब चीजें क्रिएट करोगे। यहाँ कुछ अलग तरीके से उन्होंने बताया, मैं उसमें नहीं जाता। नाउ व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स ओनली, और उसमें एक कंसेप्ट आता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का। अब ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में ना दो चीजें आता है, एक है इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड एंड दूसरा है डेटर्स कन्वर्जन पीरियड। मींस ये ट्रेडर के लिए ही होता है कि पहले कैश में से स्टॉक आए और स्टॉक में से फिर डेटर्स है और डेटर्स में से वापस कैश आए, बराबर। ये एक चीज है। तो ये सब चीजों के रिलेटेड नो डाउट एग्जांपल हो तो ये सब कंसेप्ट है, बाकी कुछ काम का नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ अभी। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज पे ले जाता हूँ। हाँ, ये देखो, बैलेंस्ड वर्किंग कैपिटल पोजीशन। अब है ना, ये चीज मैंने मेरे अपने उसके अंदर दिखाई थी
ये देखो परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी को ये लोग वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। अब मैं उसको समझाता हूँ। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स एक बार बिजनेस चालू किया, ये जो मैं बता रहा था ना, ये आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एंड ये है ना वेरिएबल। कौन सा? ये वाला, ये आपका वेरिएबल, बराबर है। ये परमानेंट, बट ये है ना स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ना, लेफ्ट टू राइट है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ही लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ना तो अपवर्ड राइजिंग ना तो डाउनवर्ड फॉलिंग। बट यहाँ देखो ये बढ़ रहा है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल वो बढ़ रही है, एंड ये जो फ्लक्चुएटिंग है ये भी बढ़ रही है। तो फिक्स जब बढ़ रही होती है ना, तो उसको ग्रोथ फर्म बोलेंगे, बराबर। एक डिक्लाइनिंग फर्म भी आती है, बट शायद उन्होंने ये नहीं ड्रॉ किया है। चलो, अब और कुछ मुद्दे हैं इसके अंदर। यस, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करना ही करना है, आपको पूछने के बहुत चांसेस हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब ये डिटर्मिनेंट्स को अलग भाषा में पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग the need of working capital requirement. इसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सपोज एक्स कंपनी है, उसमें 40 करोड़ की वर्किंग कैपिटल चाहिए और वाई नाम की कंपनी में 50 करोड़ की चाहिए। तो अब ये 40 करोड़ या 50 करोड़ आप डिसाइड कैसे करोगे? कौन से रीजन से करोगे? तो उसके लिए जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं वो है ना, वन बाय वन मैं हर एक फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो, पहला फैक्टर कौन सा है? तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, है ना। टोटल 14 फैक्टर्स है बच्चों, ऐसे एक दो नहीं है, टोटल कितने हैं? 14। उसमें एक है नेचर। अगर मैं सीधा सीधा बता दूं, अगर आपका नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस, सपोज आप यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग, बराबर, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। क्यों? क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में तो रॉ मटेरियल टू डब्ल्यू आई पी टू फिनिश गुड्स और ऐसा होता रहता है। बट अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, तो सर्विस सेक्टर में कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना। तो वो नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ट्रेडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है? ज्यादा है। बट अगर आप सर्विसेज में हो, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी है? कम है। या फिर आप ऐसे बिजनेस में हो कि जिसके अंदर क्या, कि कैश बहुत इजीली कन्वर्ट हो रही है, तो वैसे बिजनेस में ना आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अब है ना, मैं आपको ये फैक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अब आजकल ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या चालू कर दिया है, तो है ना, कैश बिजनेस चालू कर दिया। अब मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप ऑब्जर्व करना, है ना। आपको मालूम है ये रिलायंस कितनी पैसे वाली कंपनी है, बट आजकल उन्होंने ये रिलायंस फ्रेश चालू किया, ठीक है। फिर ये क्या नाम है, एवेन्यू सुपरमार्ट, दैट इज डी मार्ट। सालों पहले ये कौन से लोग हैं, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द ग्रुप, बट उन्होंने अ, बहुत बड़ा ऐसा ये डी मार्ट जैसा ही चालू किया था मांजलपुर में, बड़ोड़ा। अब कहने का मीनिंग क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने ये सब, ये डी मार्ट जैसी चीजें या फिर रिलायंस फ्रेश जैसी चीजें ये क्यों चालू की? बिग बाजार क्यों चालू किया ये सब, है ना। आपकी डे टू डे वर्किंग कैपिटल के पर्पज से ये किया है, बोलो। रिलायंस ने तो ऐसे ही किया है। अब आप सोचो, रिलायंस फ्रेश खुला है, आप जाते हो उधर,
आप तो कैश ही देते हो उधर, है ना, या तो डेबिट कार्ड से या तो क्रेडिट कार्ड से या कैश से, आप तो उसको दे दोगे। गूगल पे करोगे, क्या करोगे, पेटीएम करोगे, फोन पे करोगे, बट आप तो तुरंत कैश पे कर दोगे। अब वो एकदम सस्ते में देगा। अब ये क्या करेगा, बल्क में गुड्स लेगा, बड़ी बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो सस्ते में मिलेगा। मीन्स बिस्किट आपको वो 20 रुपए में बेच रहा है, जो मार्केट में 22-25 में बिक रहा है, आपको वो 20 में बेच रहा है, बराबर। वो सस्ते में क्यों दे पाता है? क्योंकि उसको 15 या 16 में मिलता है। मार्केट में दूसरे ट्रेडर्स को 18 में मिलता है, वो 20-22 में बेचता है, तो उसको 16 में मिलता है, और वो 20 में 19 में बेचता है, मार्केट से सस्ता। अब वो है ना 3-3 महीने का क्रेडिट पीरियड एंजॉय करेगा, उन लोगों को वो पेमेंट 3 महीने के बाद देगा, बट उनको तो तुरंत कैश पेमेंट आ गई। तो आप सोचो, उसके पास कैश तुरंत आ गई एंड उसको कैश देनी है लेट। अब उसके पास कैश का सरप्लस ही रहेगा। अब ये कैश का सरप्लस वो अपनी पेरेंट कंपनी को दे देगा। जैसे कि सपोज रिलायंस फ्रेश ने अपनी जो एक्सेस कैश है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दे दी 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, एंड वो सप्लायर को तो 3 महीने में पेमेंट करेंगे। तो इधर 2.5 महीने तक अपनी ही कंपनी में, अपनी ही ग्रुप कंपनी के पास से कैश मिल रही है, और इसमें है ना बहुत चार्जेस भी नहीं। अगर यही कैश रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सपोज बैंक में से वर्किंग कैपिटल लोन के फॉर्म में लेना चाहती है, तो है ना बहुत ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक उनसे कुछ लिखवाएगी, लोन बुलाई जाएगी बुक्स पे। यहाँ तो ऐसा नहीं, विद इन कंपनी ट्रांजेक्शन है, मिल जाता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने आजकल ये वर्किंग कैपिटल चालू किया, उसका सर ये रिलायंस फ्रेश जैसी चीजें चालू की, उसका रीजन ये है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जितनी बड़ी कंपनी है, तो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए कितनी कैश की जरूरत होगी, और उनके पास पैसे कितने लेट आएंगे। तो दैट इज वाई वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक बिजनेस दूसरा चालू कर देंगे, उसमें से ना उनको कैश मिलती रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, है ना। अपना बड़ा बड़ा बिजनेस है, बट है ना वो बड़े बड़े बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एक पान का गल्ला खोल देंगे, प्रोविजन स्टोर खोल देंगे, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम की दुकान खोल देंगे। उसमें ना तुरंत तुरंत कैश आती रहेगी, और वो कैश का है ना हमारे बिजनेस में दूसरे यूज होते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की। तो नेचर ऑफ बिजनेस है ना, आपको जैसा बिजनेस हो उधर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होती है। फिर सेकंड नंबर है मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस। अगर सपोज आपका मार्केट ऐसा है कि जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी। बट आपका मार्केट ऐसा है कि जिसमें वर्किंग कैपिटल कम होगी तो भी चलेगा, तो वो चल जाएगा। सिमिलरली आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत फ्रिक्वेंट है, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल है ना वो रोटेट होती जाएगी, जल्दी जल्दी आती जाएगी। बट सपोज आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है ना बहुत कम रोटेट हो रही है, तो आप सोचो एक आदमी गाड़ी कब लेगा, आज ली तो वो 10 साल के बाद दूसरी गाड़ी लेगा, या 5 साल के बाद। ये कस्टमर हर रोज तो आएगा नहीं, बट ये दूध लेने वाला कस्टमर तो हर रोज आएगा। तो देखो मार्केट एंड डिमांड, है ना, ये सब मैटर्स करता है वर्किंग कैपिटल में। फिर वन मोर पॉइंट, तो ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तीसरा मुद्दा देखो, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब क्या बोलोगे, अगर सपोज आप बहुत ही ज्यादा टेक्निकल यूनिट्स है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी आती है। बट आप सस्ती टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। सिमिलरली आपकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, आप सपोज ऐसा बनाते हो कि डिमांड पुल, डिमांड जितनी हो उतना ही बनाओगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की डिमांड जितनी रहेगी। बट सपोज डिमांड पुश है आपका, तो मीन्स क्या कि आप बनाते जाओगे goods, और फिर डिमांड जितनी होगी उतना बिकता जाएगा, नहीं बिकेगा तो आप है ना मार्केटिंग मार्केटिंग करके गुड्स बेचोगे। तो ये आपकी पॉलिसी डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड सेल्स पॉलिसी, बराबर। अब देखो यहाँ उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग है ना स्टेडी प्रोडक्शन पॉलिसी करते हैं, तो उनको है ना एक कंटिन्यूअस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बट कुछ लोग है ना वेरिएबल प्रोडक्शन पॉलिसी रखते हैं। वेरिएबल मीन्स क्या है, जब डिमांड ज्यादा होगी ज्यादा बनाएंगे, जब कम होगी कम बनाएंगे। तो जहाँ डिमांड बढ़ जाएगी उस टाइम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जहाँ डिमांड कम होगी वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट जो स्टेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको तो सेम लेवल की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बराबर है। चलो चौथा मुद्दा है क्रेडिट पॉलिसी।
अब ये है ना बहुत बड़ा फैक्टर। सपोज आप बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो। बहुत ज्यादा क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? सपोज आप किसी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की क्रेडिट देते हो, जिसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोले, तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है आपकी। अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है ना, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप है ना मांगोगे नहीं बहुत टाइम तक। जबकि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी लिबरल नहीं हो, पर स्ट्रिक्ट हो, तो क्या होगा? तो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी हो तो आपको है ना कैश तुरंत ही आ जाएगी। किसी को आप है ना 15 दिन से ज्यादा टाइम देंगे ही नहीं, है ना। तो 15 दिन के अंदर आप ले आते हो तो क्या, आपको वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। और मैं बताऊं आपको कि अगर आप स्लैक कलेक्शन प्रोसेस रखोगे ना, स्लैक का मीनिंग है लिबरल, तो आपकी ना बेड डेप्थ भी बढ़ेगी। सो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि है ना आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट, ना तो बहुत स्ट्रिक्ट ना तो बहुत लिबरल। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, ये भी एक फैक्टर है। सपोज मेरे को मेरा सप्लायर 3 महीने का क्रेडिट देता है तो चलेगा, बट मैं मेरे कस्टमर को 3 महीने का क्रेडिट दूं, मेरा सप्लायर मेरे को 15 महीने का क्रेडिट दे, तो फिर मेरी वर्किंग कैपिटल में हालत तंग हो जाएगी। तो अगर ये लिबरल हो, है ना, कि सप्लायर आपसे लिबरल लेवल पे क्रेडिट दे रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। और बट वो स्ट्रिक्ट ले रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। फिर है छठा पॉइंट, ये रहा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एंड सेवंथ है प्राइस लेवल चेंजेस। अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, मीन्स आप एकदम क्विकली बना देते हो रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स को इजीली बेच देते हो, एंड फिर बेचने के बाद तुरंत आप कैश भी ले आते हो, तो ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम रहेगी। बट अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उतनी स्किल्ड नहीं है, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। फिर लास्ट है प्राइस लेवल चेंजेस। अब ये प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है? अब ये प्राइस लेवल चेंजेस में ऐसा है कि सपोज आप कुछ लोगों से आप ज्यादा कीमत चार्ज कर रहे हो, एंड कुछ लोगों से आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो जहाँ ज्यादा चार्ज कर रहे हो वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, जहाँ कम चार्ज कर रहे हो वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। तो मेनली है ना ये चीज है, क्या, आपका प्राइस लेवल चाहिए। तो बच्चों यहाँ तो है ना उन्होंने सिर्फ 7 मुद्दे दिए। आई थिंक यू रिमेम्बर दिस 7 पॉइंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। मैं तो यहाँ चाहता हूँ कि हम लिख दें डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के ये मुद्दे जितने भी है ना, आपको बड़े काम में आएंगे। पहला क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। और इसके अंदर ये कितने मुद्दे हैं? 7 मुद्दे हैं, मैंने बोला ना। कौन कौन से 7? तो वो वन बाय वन वो मुद्दे के बारे में मैं बोलता हूँ। तो पहला मुद्दा आपका ये था कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में 7 मुद्दे हैं, उसमें पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलो थोड़ा प्रॉपर साइजिंग कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलो पहला मुद्दा है नेचर ऑफ बिजनेस।
अब ये मुद्दे याद रख लेना, इसको एक्सप्लेन करना है अंदर से आपको। बराबर, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो तो ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर है मार्केट एंड डिमांड कंडीशन, दूसरा मुद्दा है मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस। अब है ना, अगर मालूम है मेरे को कि कुछ प्रोडक्ट का है ना, इसी किसी पीरियड में ही डिमांड है, जैसे कि रेनकोट है तो कुछ ही पीरियड में उसकी डिमांड होगी, तो मैं उसी पीरियड में मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। बट है ना, कुछ प्रोडक्ट का आप प्रिडिक्टेबल नहीं कर पाओगे। मेडिसिन है, रेनकोट है, ये सब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे आइसक्रीम है कि भाई ये सीजन में ज्यादा यूज होता है। बट कुछ चीजें ऐसी है जिसका आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। बराबर, तो वहां वर्किंग कैपिटल डिसाइड करना टफ हो जाए। फिर तीसरा मुद्दा है सर थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। हाँ, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये हर एक में आप लिख सकते हैं। एक एक में दो दो मुद्दे ऐड कर दिए। टेक्नोलॉजी, अगर रिसेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो कम है। फिर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आपकी डिमांड पुल है, डिमांड है उतना ही बनाओगे तो कम रहेगी। बट बिना डिमांड के आप तो बनाते ही जाओगे तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। इवन स्टेबल प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, नॉन स्टेबल प्रोडक्शन होगा तो कम रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऐसे मुद्दे आप बना बना के लिख सकते हैं। फिर चौथा है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी आपकी अगर स्ट्रिक्ट है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए, एंड क्रेडिट पॉलिसी आपकी लिबरल है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर से मेरे को ज्यादा क्रेडिट मिलती है तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट रहेगी, सप्लायर से कम क्रेडिट मिलती है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, बट डिटेल में लिखना है एटलीस्ट। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्राइस लेवल चेंजेस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्राइस लेवल चेंजेस। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपकी एकदम जोरदार है तो वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है, बराबर। बट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपकी एकदम अच्छी नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस क्या, कैश का रॉ मटेरियल में कन्वर्जन, रॉ मटेरियल का डब्ल्यूएपी में, डब्ल्यूएपी का फिनिश गुड में, फिनिश गुड का डेटर्स में, ये सब एकदम फास्ट हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल क्या आपको कम चाहिए। बट सपोज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपकी कम है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। चलो, फिर है प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस में आप डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी कर रहे हो तो जहां आप ज्यादा प्राइस रख रहे हो वहां वर्किंग कैपिटल की थोड़ी कम रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ कम रख रहे हो वहां ज्यादा रहेगी। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, आप मेरे हिसाब से ये मुद्दों पे फोकस करना। अब एक नया क्वेश्चन है, इश्यूज इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपको याद हो ये क्वेश्चन भी आया था, ये रहा देखो, है ना। डिटर्मिनेंट्स तो इम्पोर्टेंट था, हमने कर लिया, बट अभी ये इश्यूज इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये वन मोर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इश्यूज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, तो ये मुद्दों पे डिस्कशन अभी हम करेंगे। चलो, अब इसमें वन बाय वन। ये पहला है मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट व्हिच मेक एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। उसमें एक है टाइम,
एक है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है क्रिटिकलिटी एंड चौथा है ग्रोथ। ये चारों फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर्स, ये एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये फाइनेंस मैनेजर के लिए वर्किंग कैपिटल को स्टडी करना, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। टाइम, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकलिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, अब है ना, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इश्यूज, वर्किंग कैपिटल से जुड़े हुए इश्यूज क्या है? तो एक है टाइम। सच में अगर आपको प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है ना, तो यू नीड अ प्लेंटी ऑफ टाइम। आपको सच में अच्छा टाइम चाहिए, जो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ये कंसेप्ट को। तो इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं कि अगर आपको प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है तो आपके पास है ना, वो मैनेज करने का प्रॉपर टाइम चाहिए, बराबर। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में है ना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूरी है डे टू डे बिजनेस के लिए। अगर ये नहीं होगा तो तकलीफ होगी। सिमिलरली क्रिटिकलिटी, क्रिटिकलिटी मीन्स क्या है कि ये जो वर्किंग कैपिटल का महत्व है, क्रिटिकल होना मीन्स क्या है? कुछ हम नहीं बोलते कि ये इसके पेरेंट या इसके ग्रैंड पेरेंट की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स तकलीफ पूर्ण, बहुत ज्यादा तकलीफ वाली है। तो वर्किंग कैपिटल का महत्व है ना, छोटी छोटी फर्म्स में बहुत है, इवन बड़ी फर्म्स में तो और, बराबर। फिर ग्रोथ, अगर आप ज्यादा ग्रोथ चाहते हो ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। तो कहने की मीनिंग, ये सभी फैक्टर्स है ना, वर्किंग कैपिटल से जुड़े हैं। तो दीज आर द इश्यूज पर्टेनिंग टू वर्किंग कैपिटल। अब ये मैटर्स को आप, ये चार मैटर को भी आप एक्सप्लेन कर पाओ ना, तो दैट वुड बी बेटर। कौन सा? टाइम, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकलिटी एंड ग्रोथ। तो जवाब क्या है? ये चार मुद्दे मैं लिख देता हूँ। टाइम, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकलिटी एंड ग्रोथ। टाइम, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकलिटी एंड चौथा है ग्रोथ। ये चार इश्यूज है वर्किंग कैपिटल से जुड़े हुए, बराबर। तो ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आपको, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये जो दो क्वेश्चन है ना बच्चों, प्लीज अंदर से, मैं तो यहाँ उस पे जनरल टॉप डिस्कशन कर रहा हूँ, बट आप लाइन टू लाइन मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन खास पढ़ लेना। तो अगर इसमें से कुछ पूछा जाए तो यू कैन एबल टू आंसर। चलो, अब कौन सा टॉपिक आ रहा है? अब करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो, ये टॉपिक है। अब आपको कंटेंट में तो है नहीं, तो यहाँ देखो, वर्किंग कैपिटल में हमको इंट्रोडक्शन चाहिए था, हमने कर लिया, कंसेप्ट कर लिया। फिर ऑपरेटिंग एंड कैश कन्वर्जन साइकिल देख ली, परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल देख ली, बैलेंस वर्किंग पोजीशन चाहिए आपको, एंड फिर डिटर्मिनेंट्स एंड इश्यूज। तो इतने मुद्दे हो चुके हैं पहले चैप्टर के, तो इतने ही थे ये चैप्टर में। अब हमको दूसरे चैप्टर में जाना पड़ेगा, जिसका टाइटल है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो अब है ना, ये भले मुद्दे हैं इधर, जैसे कि करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट रेशियो, बट है ना, मैं इसको इग्नोर करूंगा, बराबर है। क्योंकि अब ये चैप्टर में जितना कंटेंट था, ये इतना ही था आपके उसके अंदर, मीन्स हमारे कॉलेज के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बट नहीं फॉलो करने। दोस्तों, यहाँ ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी है, बट एग्जांपल्स तो आपके कोर्स में रखे नहीं है वर्किंग कैपिटल। तो इसके बाद का एक नया चैप्टर चालू हो रहा है। ये है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो चलो, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक हमको करना है? इंट्रोडक्शन,
credit policy, optimum credit policy variables, credit evaluation, monitoring receivables and factoring. इसमें मेरे हिसाब से ना ये फैक्टरिंग एक इम्पोर्टेंट चीज है एंड ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ये 2 पॉइंट ऐसे है जो ये पूरे चैप्टर में से आपको खास करने चाहिए, बाकी तो नॉर्मल चीज है। अब है ना, आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने थे, तो ये 2 तो करने ही थे, डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्ट इश्यूज इन वर्किंग कैपिटल। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल एंड डिटरमिनेंट्स दे आर वन एंड सेम। ओके, एंड ये इश्यूज, तो इतना तो हो गया। अब है वर्किंग कैपिटल, उसका एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। अब ये जनरल क्वेश्चन, बराबर। आप अच्छी वर्किंग कैपिटल मैनेज करोगे तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, एंड वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर अच्छी वर्किंग कैपिटल रहेगी तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में दोनों में अच्छी रहेगी। तो अब ये मुद्दों पे थोड़ा थोड़ा लिखना है, बराबर। ऐसा भी एक क्वेश्चन बना के पूछा था पास, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं। ओके, तो अब है ना, मैं ये आपको रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पे ले जाता हूँ।